Hello and most welcome students to my YouTube channel Jai Math Guru, and this is the lecture of differentiation for MSTCT. This is the lecture number 8. लास्ट 7 लेक्चर्स में हमने नियर अबाउट 84 इम्पॉर्टेंट MCQ सॉल्व किए हैं फॉर MSTCT डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव्स. Now in this lecture we will start from the MCQ number 85, and this MCQ number 85 is the homework question of the last lecture. So students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and please hit the bell icon to get the notification of my newly uploaded videos. So चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 85. दिस इज द क्वेश्चन 85, डिफरेंशिएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट सेलेक्टेड MCQs. तो इसे हम सॉल्व करेंगे. सी दिस क्वेश्चन एंड हियर वी हैव गिवन the derivative of, we have to find the derivative of sin x into 1 upon cos x into cos 2x plus 1 upon cos 2x into cos 3x plus 1 upon cos 3x into cos 4x, and this derivative we have to find at x equal to pi by 4. So first I will write this function 85 का हम solution देख रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 85, I have to find the derivative of this function. मैं उस sin x को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. So I will have this question like this: derivative of sin x upon cos x into cos 2x plus sin x upon cos 2x into cos of 3x plus sin x upon cos of 3x into cos of 4x. तो इस फंक्शन का मुझे डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का है एट x इक्वल टू पाई बाय 4. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल इन टाइम टू डिफरेंशिएट डायरेक्टली दिस फंक्शन. तो इस फंक्शन को हम सिंप्लीफाई करेंगे यूजिंग द डिफरेंट इंपॉर्टेंट फार्मूलेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले अगर हम इसे यूज़ करते हैं प्रॉपरली तो ये फंक्शन जितना बड़ा है उतना बड़ा नहीं दिखेगा, छोटा हो जाएगा. एंड देन इन द लास्ट स्टेप वी कैन इजीली डिफरेंशिएट दिस फंक्शन. सो see this first term sin x upon cos x into cos 2x. So I will replace this x by 2x minus x. I can replace this term x by 2x minus x. Okay, and this x can be replaced by 3x minus 2x. As the denominator angle has cos 2x and 3x, I have replaced this x by 3x minus 2x. And I can replace this x by, see here angles are 4x and 3x, so I will replace this as 4x minus 3x. Now I will simplify this first term, and using the result of this first term I can write the direct results of second and third term. So see students, I will simplify this first term. इस term को मैं simplify करता हूँ. sin of a minus b का हम formula यूज करेंगे. So this will be sin a into cos b minus cos a into sin b upon cos x into cos of 2x. sin of a minus b यूज किया है, sin a minus b, sin a into cos b minus cos a into sin b. तो अगर मैं यहाँ पे cos x into cos 2x जो डिनोमिनेटर है उसको मैं अगर सेपरेट डिवाइड करता हूँ तो cos x की टर्म कैंसिल होगी. दिस cos x विल गेट कैंसिल विद दिस cos x. sin x अपॉन sin 2x अपॉन cos 2x मेरा बनेगा tan 2x माइनस हियर cos 2x इंटू sin x अपॉन cos x इंटू cos 2x. तो यहाँ पे कौन सी टर्म कैंसिल होगी? sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b. सो हियर cos 2x विल गेट कैंसिल. sin x अपॉन cos x मेरा बनेगा tan x. So this first term sin x upon cos x into cos 2x is tan of 2x minus x. Now see here the angles of cos in the denominator are 2x and x, and after simplifying this first term we have tan of 2x minus tan of x. So using this result we can directly write the results of second and third term. So as this is sin 3x minus 2x upon cos 2x cos 3x, तो इसका रिजल्ट होगा tan of 3x minus tan of 2x, और इसका रिजल्ट होगा tan of 4x minus tan of 3x. It means we have to find the derivative of, so here this sin 2x minus x upon cos 2x into cos 2x ने क्या दिया है
tan ऑफ 2x माइनस tan ऑफ x। सिमिलरली इस टर्म का रिजल्ट क्या होगा अगर हम इसी तरह से sin ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ करके सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से मुझे मिलेगा tan ऑफ 3x माइनस tan ऑफ 2x, और इस टर्म को सिंप्लीफाई करके मुझे मिलेगा tan ऑफ 4x माइनस tan ऑफ 3x। ओके, तो अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कौन सी टर्म यहाँ पे कैंसल होती है। ये प्लस tan 2x माइनस tan 2x, दिस टू टर्म्स विल गेट कैंसल। अगेन here plus tan 3x minus tan 3x, these two terms will get cancel, and I have this tan of 4x plus tan of 4x माइनस दिस tan ऑफ x। तो देखिए कितना सिंपल फंक्शन बन गया है। नाउ वी कैन इजीली डिफरेंशिएट दिस फंक्शन। इतना बड़ा फंक्शन था, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले प्रॉपरली यूज़ करके हमने इस फंक्शन को काफ़ी छोटा कर दिया है। नाउ आई कैन डिफरेंशिएट दिस फंक्शन इजीली। सो डेरिवेटिव ऑफ सेक स्क्वायर tan ऑफ 4x का डेरिवेटिव होगा सेक स्क्वायर 4x इंटू 4 एंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ tan x सबको पता है सेक स्क्वायर x। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ x, बट आई हैव टू फाइंड दिस डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल टू π/4। तो x इक्वल टू π/4 हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एट x इक्वल टू π/4। वी आर दिस डेरिवेटिव 4 इंटू इसका फंक्शन मिलेगा मुझे 4 इंटू एक्स इक्वल टू π/4, तो 4x बनेगा, 4 कैंसल पाई, और सेक पाई होगा -1 का स्क्वायर 1, तो ये बनेगा 1 माइनस सेक स्क्वायर ऑफ π/4। सेक ऑफ π/4 इज √2 का स्क्वायर होगा 2, 4 माइनस 2, तो आंसर मेरा मिलेगा 2। सो 2 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन नंबर 85। लास्ट लेक्चर का ये होमवर्क का क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस आर हियर फॉर यू ऑफ डिफरेंशिएशन फॉर MSTCET। तो 2 इसका करेक्ट आंसर है, एंड दिस आंसर 2 इज इन द ऑप्शन सी, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। सो दिस इज द 85। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। नंबर 86 देखिए, here I have given if 3 sin of xy plus 4 cos of xy, 3 sin of xy plus 4 cos of xy equal to 5, I have to find the dy by dx derivative of this function, and this is the implicit function. So see here 86 given equation is 3 sin of xy प्लस 4 cos of xy इज इक्वल टू 5। इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसे हमें डिफरेंशिएट करने का है, वी हैव टू फाइंड द dy by dx। सो आई विल राइट दिस -5 इक्वल टू 0। सो दिस इज f ऑफ xy इक्वल टू 0। xy का ये फंक्शन है, इम्प्लिसिट है। पार्शल डिफरेंशिएशन हम इसको यूज़ करेंगे। पार्शल डिफरेंशिएशन से हमें कम टाइम में इसका आंसर मिलेगा। सो यू नो द प्रोसीजर। इससे पहले भी हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस पार्शियल डिफरेंशिएशन के मेथड से सॉल्व किए हैं। सो डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन वी कैन डायरेक्टली राइट dy by dx। प्रोसीजर क्या है, माइनस साइन लिखने का है, ये माइनस साइन नहीं भूलने का है इन द ब्रैकेट। अब यहाँ पे इस फंक्शन को, पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का है विथ रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट, और नीचे फिर से डिफरेंशिएट करने का है विथ रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x constant. So this is the procedure to differentiate this type of implicit function. So 3 constant derivative of sin of xy, sin of xy का डेरिवेटिव क्या होगा, cos of xy इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इंटू y, जिसमें y कांस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो y कांस्टेंट होने के कारण y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x होगा, तो डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x कितना होगा 1। प्लस आगे चलते हैं 4 कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ cos of xy is minus sin of xy into अगेन डेरिवेटिव ऑफ xy, जिसमें y कांस्टेंट है, तो y एज इट इज़ होगा डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x कितना होगा 1। 5 तो प्योरली कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव डायरेक्टली 0 होगा। ओके, नाउ फिर से यहाँ पे मुझे डिफरेंशिएट करने का है सेम फंक्शन, इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का है विथ रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x कांस्टेंट। तो अगेन हियर 3 इज कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ xy इज cos of xy।
अब जब मैं एक्स वाई को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो एक्स कांस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करने का है, सो डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई बनेगा 1 और एक्स एज इट इज़ होगा। फिर से यहाँ पे मिलेगा -4 साइन ऑफ एक्स वाई, 4 एज इट इज़, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटू वाई। तो फिर से x मेरा विथ एक्स कॉन्स्टेंट है एंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y बनेगा 1, 5 का डेरिवेटिव 0। ओके, तो यहाँ से मेरा माइनस एज इट इज़, यहाँ पे मेरा y दिख रहा है, यहाँ पे भी y है, तो इस y को कॉमन ले लेंगे अपॉन, अब यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो इस x को कॉमन ले लिया, न्यूमरेटर से y कॉमन, डिनोमिनेटर से x कॉमन, सो टेकिंग x कॉमन क्या बचता है ब्रैकेट में, सो ऊपर बचेगा 3 इंटू कॉस ऑफ एक्स वाई माइनस 4 इंटू साइन ऑफ एक्स वाई। ओके, और नीचे भी देखिए x कॉमन लेने के बाद मेरे पास ब्रैकेट में मिल रहा है 3 इंटू कॉस ऑफ एक्स वाई minus 4 into sin of xy. So both these brackets are same, therefore this will get cancelled and I have this minus y by x. So derivative of this function, implicit function, इसका dy by dx क्या है, minus y by x. So students, इस इक्वेशन को, इस इम्प्लिसिट फंक्शन को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो एक्स वाई दिस इज एफ ऑफ एक्स वाई का ये फंक्शन है। और जब भी कभी एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 होता है, व्हेनेवर एफ ऑफ एक्स वाई 0 होता है, तब डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, माइनस वाई बाई एक्स। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट, इंपॉर्टेंट ट्रिक ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन की ट्रिक है। एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, माइनस वाई बाई एक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ऐसा फंक्शन है लॉग ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई, लॉग ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई, तो दिस इज ऑल्सो एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0, क्योंकि मैं इसे लिख सकता हूँ लॉग ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0। तो इस केस में भी डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, माइनस वाई बाई एक्स। डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, माइनस वाई बाई एक्स। वन मोर थिंग, यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट फिर से आपको बताऊंगा, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 है तो डी वाई बाई डी एक्स मेरा माइनस वाई बाई एक्स होगा। वन इम्पॉर्टेंट नोट इज हियर, इफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, इफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई का अगर कोई फंक्शन है इम्प्लिसिट फंक्शन, देन डी वाई बाई डी एक्स, तब मेरा डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, तब मेरा डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, -1। सो यू हैव टू नोट दिस पॉइंट ऑल्सो। एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 है तो डेरिवेटिव माइनस वाई बाई एक्स ही होता है। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 होता है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, -1। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव दिस implicit function sin of x plus y plus cos of x plus y, sin of x plus y plus cos of x plus y इक्वल टू 0 है, तो उस केस में भी डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, -1। तो कोई भी x प्लस वाई का फंक्शन है तो डी वाई बाई डी एक्स -1 होता है, x इंटू वाई का फंक्शन होता है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, -y बाई एक्स। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड हियर। काफ़ी कम टाइम में क्वेश्चन देखते ही, इक्वेशन देखते ही आप आंसर इसका बोल सकते हैं। सो दीज टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नोट करने के हैं। इफ एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 डी वाई बाई डी एक्स इज माइनस वाई बाई एक्स, एंड इफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1। सो दिस वाज 86। नेक्स्ट चलते हैं 87। दिस 87 सी दिस क्वेश्चन नंबर 87 क्या दिया है, इफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स ए, देन आई हैव टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म। इस केस में भी डी वाई बाई डी एक्स वाई बाई एक्स होता है। कैसे आता है मैं आपको दिखाऊंगा। सो मैं इस फंक्शन को लिख लेता हूँ, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स ऑफ ए। ओके, तो इसे किस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, सी हियर, दिस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़ लिखता हूँ। कॉस इनवर्स को मैं राइट साइड को शिफ्ट करूँगा तो कॉस इनवर्स का बनेगा कॉस, तो कॉस ऑफ होगा tan इनवर्स ही। राइट, सी द प्रोसीजर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ ए इज कांस्टेंट, तो टेन इनवर्स ए भी कांस्टेंट होगा, कॉस ऑफ टेन इनवर्स ए भी कांस्टेंट होगा, पूरी होल टर्म ही पूरा कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट को मैं कंसिडर करता हूँ के, इस कांस्टेंट को मैं क्या कंसिडर करता हूँ, के कंसिडर करता हूँ। नाउ आई हैव दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू के टाइम्स के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के टाइम्स व्हाट वाई स्क्वायर। ओके, अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हमें डिफरेंशिएट करने का है। सो दिस विल गिव 2x माइनस 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू के कॉन्स्टेंट है। सो बिफोर आई थिंक फॉर इसको बाद में हम डिफरेंशिएट करेंगे, पहले हम x की टर्म कलेक्ट करेंगे। फर्स्ट विल कलेक्ट द टर्म्स ऑफ x, तो ये बनेगा 1 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर। पहले x और y की टर्म सेपरेट कीजिए एंड देन वी हैव टू डिफरेंशिएट, क्योंकि उस केस में अभी डी वाई बाई डी एक्स हमें ईजिली मिल जाएगा। सो प्लस वाई स्क्वायर बनेगा, तो ये बनेगा 1 प्लस के इंटू व्हाट वाई स्क्वायर। नाउ वी विल डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हमें विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करने के टू फाइंड द डी वाई बाई डी एक्स। सो 1 माइनस के तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 1 प्लस के इज कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर सबको पता है 2y डी वाई बाई डी एक्स, तो मिल गया डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, दिस 2 विल गेट कैंसल एंड दिस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो हमें पूछा है y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्या पूछा है dy by dx only, we have to find the dy by dx only. Okay, so this dy by dx is equal to what, 1 minus k into x upon this 1 plus k into y। बट ऐसा तो विदाउट k वाले ऑप्शन से k कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये 1 माइनस के अपॉन 1 प्लस के की वैल्यू यहाँ से मुझे शिफ्ट करने की है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को ऑब्ज़र्व करता हूँ तो मुझे 1 माइनस के अपॉन 1 प्लस के को क्या लिख सकता हूँ, दिस 1 माइनस के अपॉन 1 प्लस के। सी दिस 1 माइनस के अपॉन 1 प्लस के इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। सो आई विल रिप्लेस दिस टर्म बाय वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एंड इनटू दिस एक्स बाय वाई, तो एक्स एक्स कैंसल, वाई वाई कैंसल, ऊपर एक वाई बचेगा, नीचे एक एक्स बचेगा। सो दिस इज वाई बाय एक्स। ओके, सो डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एनी कांस्टेंट अगर है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, वाई बाई एक्स। तो यहाँ पे भी किसी भी यहाँ पे कोई भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, और यहाँ पे देखिए कोई भी होमोजीनियस हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई है, या एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, तो इस केस में हमेशा डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, वाई बाई एक्स होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज साइन इन्वर्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू कोई के कांस्टेंट है, तो इस केस में भी डी वाई बाई डी एक्स ऑलवेज क्या होगा, वाई बाई एक्स होगा। यहाँ पे कोई tan इन्वर्स है, tan है, इन्वर्स हो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, यहाँ पे होमोजीनियस टर्म होनी चाहिए। डिग्री ऑफ x, ईच टर्म ऑफ x एंड y इज इक्वल x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई भी रहा, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, y बाई एक्स होगा। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 87। सो y बाई एक्स इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन विच इज इन द फर्स्ट ऑप्शन। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नाउ सी द 88, सी द 88। सो व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, इफ कॉस इनवर्स ऑफ, फिर से वही कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a है, तो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, व्हाट विल बी द y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो उसी टाइप का क्वेश्चन है, गिवन इज कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a एंड आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो देखिए यहाँ पे y इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू वाई बाई एक्स। इस केस में डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, वाई बाई एक्स। लेकिन उस फॉर्म में हमें आंसर नहीं दिया है, हमें आंसर फिर से a के फॉर्म में
पूछा है। तो देखिए इससे मैं ट्रांसफ़र करता हूँ कॉस इन्वर्स को, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये होगा कॉस ऑफ 2a। फिर से इस टर्म को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 2a प्लस वाई स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 2a, राइट। तो देखिए अब यहाँ पे मुझे फिर से टर्म्स कलेक्ट करेंगे। सो इट विल बी 1 माइनस कॉस ऑफ 2a, 1 माइनस कॉस ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 2a इंटू एक्स स्क्वायर, और ये बनेगा 1 प्लस कॉस ऑफ 2a इंटू वाई स्क्वायर। ओके, सेम टाइप का क्वेश्चन है, y बाई एक्स ही इसका डेरिवेटिव है, लेकिन आंसर हमें a के फॉर्म में देने का है। सो दिस इज 1 माइनस कॉस 2a, 1 माइनस कॉस 2a क्या होगा, व्हाट विल बी द 1 माइनस, इसे डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं क्योंकि हमें फाइंड करने का है dy बाई डी एक्स। सो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, 1 माइनस कॉस 2a कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि a कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है तो कॉस ऑफ 2a भी कांस्टेंट होगा, 1 माइनस कॉस 2a भी कांस्टेंट होगा। सो दिस इज कांस्टेंट टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x, एंड दिस इज अगेन कांस्टेंट 1 प्लस कॉस 2a इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर होगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। सो अगेन दिस टू विल गेट कैंसल। तो ये y इंटू डी वाई बाई डी एक्स मुझे पूछा है, दिस इज y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। सो दिस इज y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये मेरा y इंटू डी वाई बाई डी एक्स होगा 1 माइनस कॉस 2a इंटू दिस ए एक्स, देखिए ए एक्स यहाँ पे है, इंटू एक्स अपॉन दिस 1 प्लस कॉस 2a। बस फार्मूला आप यूज़ करने के हैं, 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा और 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा काफ़ी बार हमने यूज़ किए हैं। 1 माइनस कॉस ऑफ 2a होगा 2 साइन स्क्वायर a इंटू एक्स, एंड व्हाट इज़ 1 प्लस कॉस 2a, 1 प्लस कॉस 2a होगा 2 कॉस स्क्वायर a इंटू एक्स। सो दिस 2 इज गेट कैंसल, इंटू एक्स नहीं है यहाँ पे, तो ये x और साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a, व्हाट इज साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a क्या होगा, tan स्क्वायर a। सो दिस इज द dy बाई डी एक्स। सो देखिए x इंटू tan स्क्वायर a, ये इसका डेरिवेटिव है, सॉरी दैट इज द वैल्यू ऑफ y इंटू dy बाई डी एक्स इन दिस केस। सो y इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x tan स्क्वायर a। सो दिस इज इन द ऑप्शन सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 88। नाउ सी द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन 89 का क्वेश्चन है। नाउ जस्ट वी हैव सॉल्व दिस 88। ओके, so here 89 cos inverse of again same type है, e raised to x minus e to the power minus x upon e to the power x plus e to the power minus x is equal to tan of y in, तो फिर से हमें पूछा है dy by dx। ओके, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस भी देखिए काफ़ी अलग हैं, y by x नहीं है तो हमें आंसर इस सेक के फॉर्म में देने का है, सेक स्क्वायर वाई दिखाई दे रहा है, e रेज़ टू एक्स दिखाई दे रहा है, तो किस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मैं एक फंक्शन लिख लेता हूँ कॉस इन्वर्स ऑफ e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x, इसी तरह का फंक्शन है, इज इक्वल टू व्हाट, tan ऑफ y। ओके, सो क्या कर सकते हैं अब इस केस में, अगर हमें ये dy बाई डी एक्स इस फॉर्म में dy बाई डी एक्स चाहिए तो इस कॉस को हमें ट्रांसफ़र नहीं करने का है, सब्स्टिट्यूशन यूज़ करने का है, क्योंकि देखिए एक्सप्रेशन किस फॉर्म में हम ला सकते हैं, कॉस के फॉर्मूले इसमें यूज़ होंगे। इसे लिखेंगे हम 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा e टू द पावर 2x माइनस 1। इस e टू द पावर माइनस एक्स को 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो e टू द पावर 2x प्लस 1 होगा, और डिनोमिनेटर के दोनों e टू द पावर x कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरह का ये फंक्शन मुझे मिला है tan ऑफ y। होप आपको ये स्टेप समझ में आए होगी। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने अब तक सॉल्व किए हैं और दिस इज़ द सीईटी आपका बोर्ड भी हो चुका है, तो इस तरह के छोटे छोटे स्टेप्स आपको इजीली समझ में आना चाहिए। हाउ द e टू द पावर x से e टू द पावर 2x क्यों बना है, इसके पावर पॉजिटिव करके सॉल्व किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। सो ओके, नाउ
कॉस ऑफ 2 थीटा का ये फॉर्मूला है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इस तरह का अगर एक्सप्रेशन है तो हमें x इक्वल टू टेन थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो मैं e टू द पावर x को टेन थीटा सब्स्टिट्यूट करता हूँ, सो कॉस इन्वर्स ऑफ, और यहाँ से मैं माइनस भी कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बनेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, आर यू गेटिंग और नॉट? यहाँ से माइनस कॉमन लिया है तो ये 1 माइनस ई टू द पावर 2x होगा, यानी 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, दिस इज़ 1 प्लस ई टू द पावर 2x, यानी ई टू द पावर 2x इज ई रेज टू एक्स का होल स्क्वायर, तो ये टेन स्क्वायर होगा। सो इज इक्वल टू व्हाट? टेन वाई। ओके, सो अब देखिए, दिस इज कॉस इनवर्स ऑफ माइनस, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ कॉस ऑफ 2 थीटा? लास्ट का कॉस ऑफ 2 थीटा के जे 4 फार्मूले जे कॉस साइन वाला कॉस वाला, लास्ट है टेन वाला। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज कॉस ऑफ 2 थीटा, कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू टेन वाई। Now here we have to use the important property of inverse trigonometric function। inverse trigonometric function की important property हमें यूज़ करने की, cos inverse of minus x, cos inverse of minus x क्या होगा? what will be the cos inverse of minus x? so cos inverse of minus x क्या होता है? this is pi minus cos inverse of x। तो इस तरह की property हमें यूज़ करने की है। so this is cos inverse of minus x, so this is equal to pi minus cos inverse of x। so cos inverse of 2 theta x यानी cos of 2 theta is equal to what? tan y। cos inverse of minus x, cos inverse of minus x is equal to pi minus cos inverse of x। अब हम इसे easily differentiate कर सकते हैं, simplification almost हो चुका है। so this will give pi cos इनवर्स ऑफ थीटा इज थीटा, सो ये बनेगा पाई माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू टेन वाई, एंड दिस इज पाई माइनस 2 पाई माइनस 2। तो थीटा को फिर से हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, e टू द पावर x इक्वल टू टेन थीटा है, सो थीटा बनेगा टेन इनवर्स ऑफ ई रेज टू एक्स, टेन इनवर्स ऑफ e टू द पावर x इक्वल टू tan y। अब मेरा आंसर आ चुका है। नाउ आई विल डिफ्रेंशिएट एट दिस स्टेप, इस स्टेप को मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा एंड आई विल गेट द रिक्वायर्ड dy बाय dx। सो सी स्टूडेंट्स, पाई तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 होगा, माइनस 2 इज कांस्टेंट इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स f ऑफ x 1 अपॉन 1 प्लस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर, यानी e टू द पावर x का स्क्वायर e टू द पावर 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर 2x होगा e टू द पावर 2x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ tan y का डेरिवेटिव क्या होगा? सेक स्क्वायर y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y, वी आर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, सो डेरिवेटिव ऑफ tan y विथ रिस्पेक्ट टू x विल बी सेक स्क्वायर y इंटू वॉट? dy बाई dx। तो यहाँ से मेरा dy बाई dx मिल गया है, तो क्या होगा dy बाई dx? माइनस 2 इंटू ई टू द पावर x अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर 2x इंटू दिस सेक स्क्वायर y। तो देखिए काफ़ी अलग टाइप का क्वेश्चन है, इस तरह से इसका डेरिवेटिव मिला है, माइनस 2 इंटू ई टू द पावर x अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर 2x इंटू सेक स्क्वायर y। तो देखिए कौन से ऑप्शन में इस तरह का दिखाई दे रहा है? फर्स्ट ऑप्शन, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, माइनस 2 इंटू ई टू द पावर x अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर 2x इंटू सेक स्क्वायर y। तो तीनों क्वेश्चंस 87, 88 और 89 में इसे कॉस इनवर्स के तीनों अलग अलग क्वेश्चन देखे हैं, उसमें जो फर्स्ट रिजल्ट था उसमें dy बाई dx हमेशा y बाई x होता है। एज पर द रिक्वायर्ड ऑप्शन देख के हमें किस तरह से उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का है, किस तरह से सिंप्लीफाई करने का है, इन 3 क्वेश्चंस में आपको समझ में आ जाएगा। सो दिस वाज 89। नाउ सी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 90 वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्या दिया है क्वेश्चन में? इफ़ एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस वाई इक्वल टू 0 वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, देन आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो पहले मैं फंक्शन को राइट डाउन करता हूँ, फंक्शन को लिख लेता हूँ एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस वाई इक्वल टू
0. ओके, सो दिस इसे डिफरेंशिएट करने से पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे. आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + x होल स्क्वायर इंटू dy/dx. ओके, सो इक्वल टू मैं इसे इस तरह से लिख लेता हूँ, x अपॉन रूट ऑफ 1 + x इक्वल टू -y अपॉन रूट ऑफ 1 + y. तो ये बनेगा x इंटू रूट ऑफ 1 + y इक्वल टू -y इंटू रूट ऑफ 1 + x ही है, 1 + x² नहीं है, 1 + x. ओके, अब इसे स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड ताकि रूट निकल जाए. x² इंटू 1 + y² इंटू 1 + x. रिमूव द स्क्वायर्स, वी हैव टू स्क्वायर द बोथ साइड्स. अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x² + x² इक्वल टू y² + x इंटू y², एंड दिस विल बिकम x² - y² इक्वल टू, यहाँ से अगर मैं xy कॉमन ले लेता हूँ, इस टर्म को शिफ्ट करके xy कॉमन लेता हूँ तो मुझे मिलेगा x - y, एंड दिस x² - y², दिस x² - y² इज अगेन x - y into x plus y is equal to xy into x minus y, and I have given in the question x is not equal to y. जे दिया है क्वेश्चन में x is not equal to y, x is not equal to y, it means x minus y is not equal to 0, x minus y is not equal to 0, x minus y is not equal to 0 as x is not equal to y. So I have to divide this equation by x minus y, से मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ. अब मुझे ये मिल गया है x plus y इक्वल टू x इंटू वाई. ओके, सो x plus y, x minus y, xy² माइनस x²y है, तो xy कॉमन लेंगे तो मुझे y माइनस x मिलेगा. ये स्टेप यहाँ पे गलत हो चुकी है और ये भी y माइनस x है. यहाँ पे देखिए, दिस इज गड़बड़ नहीं करने की, xy² माइनस x²y, xy कॉमन लेते हैं तो y माइनस x मुझे मिलेगा. सो नोट दिस इम्पोर्टेंट पॉइंट, और जब x माइनस वाई से डिवाइड करूँगा तो मुझे यहाँ पे माइनस साइन मिलेगा. ओके, सो ये हमारी गलती थी, मिस्टेक थी. ओके, बिफोर टाइम वी हैव करेक्टेड दिस. अब हमें इसे डिफरेंशिएट करने का है. तो देखिए मेरे पास क्या इक्वेशन आया है, x plus y equal to minus xy. Now we will differentiate this. So derivative of x is 1, derivative of y dy by dx equal to minus of x into y, u into v यूज़ करना पड़ेगा. फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन y, और x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा. सो ये बनेगा 1 + x माइनस एक्स डिवाई बाई डी एक्स. तो इधर पे प्लस एक्स डिवाई बाई डी एक्स होगा, डिवाई बाई डी एक्स प्लस एक्स डिवाई बाई डी एक्स. 1 + x डिवाई बाई डी एक्स कॉमन लेके इस तरह से मिलेगा. ये माइनस वाई, ये दिस इज़ माइनस ऑफ y एंड दिस इज़ -1. ओके, लेकिन मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करने का है. यहाँ पे वैल्यू मिली मुझे 1 + x इंटू डिवाई बाई डी एक्स, लेकिन क्वेश्चन में देखिए आई हैव टू फाइंड 1 + x होल स्क्वायर इंटू डिवाई बाई डी एक्स. तो दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1 + x से. सो 1 + x इंटू 1 + x, 1 + x होल स्क्वायर इंटू डिवाई बाई डी एक्स. सो 1 + x इंटू, यहाँ पे मैं माइनस भी कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पे, और इस ब्रैकेट में लिखता हूँ y + 1. ओके, so now this is 1 + x² into dy by dx. so 1 + x होल स्क्वायर into dy by dx. तो ऑप्शन तो इस तरह का नहीं दिख रहे हैं. ऑप्शंस किस फॉर्म में हैं, प्योरली नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, यानी फिर से मुझे कुछ सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा. सो आई थिंक हियर इज़ द सब्सटीट्यूशन x + y. तो इस ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बनेगा माइनस ऑफ, इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, y + 1 प्लस xy प्लस xy, y + 1 प्लस xy प्लस x. ओके, राइट 1 into y + 1 is y + 1 प्लस xy प्लस x. राइट,
अब मुझे इस एक्स वाई को लिख सकता हूँ मैं, इस एक्स वाई को क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई। ओके, सो दिस इज y प्लस 1 एक्स इंटू वाई। सी यार, एक्स इंटू वाई को क्या लिखने का है, माइनस एक्स माइनस वाई, माइनस एक्स माइनस वाई और ए प्लस एक्स। अब देखिए ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसल, प्लस वाई माइनस वाई कैंसल, तो ये प्लस 1 इंटू माइनस 1, तो माइनस 1 यहाँ पे आंसर है। तो दिस इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। स्क्वायर्स रूट्स हमने रिमूव किए बाय स्क्वेयरिंग द बोथ साइड्स, और यहाँ पे इस वैल्यू को मैंने सब्स्टिट्यूट किया है। लास्ट स्टेप में एक्स इंटू वाई को मैंने लिखा है माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई, हियर एक्स प्लस वाई। तो ऑब्जर्व कीजिए, स्टेप्स नोट डाउन कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट सिलेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो दिस वाज 90, नाउ वी टाइम टू सॉल्व द 91। सो सी हियर, दिस इज द 91, दिस इज द 91। क्या दिया है फंक्शन, क्या दिया है फंक्शन में, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर देन डिवाइड बाई एक्स। काफ़ी बड़ा इनवर्स फंक्शन है, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन तो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल भी होगा तो काफ़ी टाइम आपका वेस्ट होगा, यू विल नॉट गेट द आंसर इन द टाइम। सो क्या फॉर्मूला यूज़ करने का है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की एक प्रॉपर्टी अगर आपको याद है तो यू कैन इजीली डिफरेंशिएट फंक्शन विद इन अ मिनट, 1 मिनट के अंदर ही आप इसको सॉल्व करेंगे। सो साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो आई हैव टू फाइंड द dy बाई dx। सो अगर आपके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ अच्छी तरह से आपको याद है, उसमें इन्वर्स के मेरे आप वीडियो देख सकते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें भी मैंने इस टाइप की एक प्रॉपर्टी आपको दी थी, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। तो विदाउट सब्स्टिट्यूशन आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर दे, कोई सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। एक सिंगल प्रॉपर्टी साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के साथ में आपको कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, ये 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले याद रखने के। सो आई हैव दिस रिजल्ट, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई होता है साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई है, तो यहाँ पे भी हम माइनस साइन ले लेते हैं। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई के भी मैंने फॉर्मूला दिया था, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है। ओके, अब मैं राइट साइड लिखता हूँ साइन इनवर्स ऑफ, ये देखिए साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी इसी फंक्शन को अप्लाई होती है, ऑब्जर्वेशन है मेरा। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई होता है साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ, साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स। सी हियर, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स को अप्लाई करके देखिए, ये प्रॉपर्टी यूज़ करके साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स लिखा है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो ये वाई है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा एक्स, फिर से लिखने का है वाई यानी रूट ऑफ एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया है। सो this is what sin inverse x plus sin inverse root x. So this y is what sin inverse x plus sin inverse of रूट एक्स। कोई सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हो और उससे ऑब्जर्व करके आपको अगर ये पता चल गया है कि दिस इज़ नथिंग बट व्हाट साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स, देखिए कितना सिंपल है। नाउ वी कैन डिफरेंशिएट दिस dy बाई dx, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इसका डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ एक्स इज 1 बाय 2 रूट ऑफ एक्स। तो ऑप्शंस को देखिए, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सो दिस इज़ 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस
1/2 रूट ऑफ, तो x को ब्रैकेट रूट के अंदर ले लेंगे, x माइनस एक्स स्क्वायर। तो किस ऑप्शन में है इस तरह का आंसर? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 रूट ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए थर्ड ऑप्शन सी, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट है। 91 कंप्लीटेड। सी द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट 92। हियर इज इनवर्स फंक्शन है y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, सी द क्वेश्चन, वीडियो पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई dx मुझे फाइंड आउट करने। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन से, बेस्ट MCQ है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। सो हियर इज माय क्वेश्चन नंबर 92। y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर। तो मैं इसे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, साइन कॉस में कन्वर्ट करता हूँ। साइन इनवर्स tan इनवर्स ऑफ 1 बाय कॉस साइन बाय कॉस, तो 1 प्लस साइन एक्स, 1 बाय कॉस साइन बाय कॉस, 1 प्लस साइन एक्स बाय कॉस एक्स का होल स्क्वायर बनेगा। एंड दिस विल बिकम tan इनवर्स ऑफ, दिस विल बिकम 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। साइन फॉर यस, कॉस फॉर सी, ऐसा यूज करेंगे। तो कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, सो ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के फैक्टर हो गए 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। आर यू गेटिंग और नॉट? यस मीन्स साइन एक्स, सी फॉर कॉस एक्स। तो इस तरह से मैंने सिंप्लीफाई किया है। अब देखिए फंक्शन मुझे सिंप्लीफाइड फॉर्म में मिला है। 1 प्लस साइन एक्स कैंसिल होगा, तो ऊपर बचेगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन डी, नीचे बचेगा 1 माइनस साइन एक्स। अब हम इसे डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि इन्वर्स फंक्शन है, सब्सटीट्यूशन पॉसिबल नहीं है, कोई फार्मूला इसको अप्लाई नहीं होने वाला था, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। स्क्वायर की वजह से हमें सिंप्लीफिकेशन नहीं मिल रहा है इस स्टेप से, तो हमने इस तरह से इसको सिंप्लीफाई किया है। नाउ आई विल डिफ्रेंशिएट दिस फंक्शन। नाउ आई हैव दिस y इक्वल टू दिस tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। तो देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिवाइड बाई डी एक्स tan इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस। इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, u बाई वी यूज़ करना पड़ेगा। सो इट इज़ 1 माइनस एस स्क्वायर 1 माइनस एस इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस साइन एक्स को 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। तो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, सो 1 प्लस ये माइनस माइनस प्लस साइन एक्स का कॉस होगा। तो इसे हमें सिंप्लीफाई करने का है, तो ये बनेगा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। नाउ a माइनस बी होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी होल स्क्वायर होगा 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर होगा, 1 प्लस 1 कितना होगा 2, और माइनस 2 साइन एक्स प्लस 2 साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस 2 साइन एक्स कैंसिल होगा, और ये माइनस माइनस प्लस 1 मिनट, इसको 1 माइनस 2s, ये बनेगा 1 माइनस 2s प्लस एस स्क्वायर, और ये बनेगा 1 प्लस 2s प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये भी कैंसिल होगा, तो 1 प्लस 2s स्क्वायर, 1 प्लस 1 2s स्क्वायर होगा, राइट। इस तरह से ये करने का है। ओके, नाउ सीयर, अब यहाँ पे क्या होता है, सो दिस इज 1 माइनस साइन इंटू कॉस प्लस साइन इंटू कॉस अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। सो हियर दिस साइन इंटू कॉस विल गेट कैंसल, c माइनस सी एस प्लस सी एस। ओके, सो सी स्टूडेंट्स, दिस इज डायरेक्टली गेट कैंसल। तो यहाँ पे बचा है 1 माइनस
1 प्लस कॉस एक्स बचा है, राइट, 1 प्लस कॉस एक्स, और ये 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो इस तरह का कोई ऑप्शंस मेरे पास है या नहीं है, ऊपर सिर्फ कुछ तो भी। सो हियर इज सी, हियर इज सी, तो ये बनेगा सी प्लस सी, 2c बनेगा, यानी 2 cos x, राइट, एंड दिस 2 विल गेट कैंसिल, cos x अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। इस तरह का ये आंसर है, cos x अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। वेरी नाइस एंड बेस्ट क्वेश्चन 92। सो दिस इज इन द ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, cos x अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हमारा पॉइंट रह गया था c माइनस सी एस, तो ये c प्लस सी, 2c यानी 2 cos x माइनस साइन एक्स cos x प्लस साइन एक्स cos x कैंसिल। सो दिस वाज 92। नाउ सी द नेक्स्ट 93। 93 क्या दिया है, क्या फाइंड आउट करने का है, y इक्वल टू फिर से इनवर्स tan इनवर्स ऑफ y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/2x माइनस x/2। आई हैव टू फाइंड dy/dx। काफ़ी सिंपल है, इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, सब्सटीट्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 1/2x माइनस x/2, ओके। तो देखिए tan इनवर्स ऑफ, किस तरह से इसमें सब्सटीट्यूशन करने के लिए एक्सप्रेशन किस तरह से हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2x से, यहाँ पे 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ऊपर बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, टेकिंग एलसीएम यहाँ पे आ चुके हैं। अब सब्सटीट्यूशन करेंगे x इक्वल टू tan ऑफ, बिकॉज इन दिस मुझे दिख रहा है 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan 2 थीटा का ये रेसिप्रोकल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो tan इनवर्स ऑफ, देखिए ऊपर आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा आफ्टर सब्सटीट्यूशन, नीचे आएगा 2 tan थीटा, तो tan ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, लेकिन ये उसका रेसिप्रोकल है तो ये बनेगा cot थीटा, ओके, cot 2 थीटा। सो tan इनवर्स ऑफ cot ऑफ 2 थीटा, तो इस cot ऑफ 2 थीटा को मुझे tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा। tan इनवर्स ऑफ cot थीटा इज tan ऑफ π/2 माइनस थीटा, tan cot थीटा इज tan ऑफ π/2 माइनस थीटा, तो tan इनवर्स tan कैंसिल होगा, π/2 माइनस 2 थीटा आएगा। सो y इज इक्वल टू दिस, एंड आफ्टर अगेन इस थीटा को मुझे रिप्लेस करने का है, तो थीटा विल बी व्हाट, tan इनवर्स ऑफ x, ओके। यहाँ से मुझे थीटा क्या मिलेगा, tan इनवर्स ऑफ x, सो दिस इज y। अब देखिए इसे मैं इजीली डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, dy/dx π/2 का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट माइनस 2 अपॉन डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर है। ये कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है, माइनस 2/x स्क्वायर प्लस 1 हो या 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, बेस्ट क्वेश्चन है। नाउ सी द नेक्स्ट 94, very very important and best question। 94 क्या दिया है क्वेश्चन में, 94 में वीडियो पॉज करके आप भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। y इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स, एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स दिया है, एंड वेरिएबल रेस्ट टू वेरिएबल के फॉर्म में है, लॉग लेके इसको हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सो dy/dx y इंटू एफ ऑफ एक्स दिया है, उसमें का एफ ऑफ एक्स मुझे फाइंड आउट करने का है। सो हियर इज द गिवन फंक्शन एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स, एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग लेंगे तो ये बचेगा, ये बनेगा x इंटू लॉग ऑफ एक्स टू द पावर एक्स, फिर यहाँ पे लॉग m रेज़ टू n यूज़ करेंगे तो ये बनेगा x लॉग x, तो ये x और ये पहले वाला x इंटू एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर लॉग x। तो अब देखिए इसे हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लॉग y का डेरिवेटिव 1/dy/dx, फर्स्ट एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ लॉग x इज़ 1/x प्लस लॉग x इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, तो ये बन गया x प्लस 2x इंटू लॉग x, एंड दिस इज dy/dx इज इक्वल टू y, और इस x को भी मैं कॉमन ले लेता हूँ, ये y यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा है, x कॉमन लिए तो 1 प्लस 2 लॉग x, x कॉमन लिया तो 1 प्लस 2 लॉग x, सो y इंटू एफ ऑफ एक्स,
y इंटू एफ ऑफ एक्स, सो डी वाई बाई डी एक्स वाई इंटू एफ ऑफ एक्स, तो ये मेरा एफ ऑफ एक्स है, x इंटू 1 प्लस 2 लॉग एक्स, x इंटू 1 प्लस 2 लॉग एक्स, x इंटू 1 प्लस 2 लॉग एक्स, ऑप्शन सी थर्ड ऑप्शन में करेक्ट है 94. नाउ सी द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट 95 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट सिलेक्टेड. क्या इक्वेशन दिया है, a माइनस बी इंटू टेन वाई इंटू ए प्लस बी इंटू टेन एक्स, ए माइनस बी इंटू टेन वाई प्लस ए प्लस बी इंटू टेन एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो मुझे फाइंड आउट करने का है डी वाई बाई डी एक्स, ए माइनस बी इंटू टेन वाई इंटू ए प्लस बी इंटू टेन एक्स इक्वल टू मुझे दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो मुझे इस केस में डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करने का है. तो डायरेक्टली तो हम नहीं डिफ्रेंशिएट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे. क्या होता है देखेंगे. सो पहले ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर से कैंसिल होने जा रहा है. तो यही मुझे ट्रिक इसमें दिखाई दी. तो ए स्क्वायर प्लस ए बी टेन एक्स माइनस ए बी टेन वाई और ये माइनस बी स्क्वायर टेन एक्स इंटू टेन वाई इज इक्वल टू ये राइट साइड में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स, सिंप्लीफाई करते रहिए, आपको लास्ट में समझ में आएगा कि किस तरह से हमें इसको डिफ्रेंशिएट करने का है. तो देखिए यहाँ पे मैं ए बी कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बनेगा टेन एक्स माइनस टेन वाई. ये ए बी कॉमन ले लिया है, ए बी कॉमन, टेन एक्स माइनस टेन वाई माइनस बी स्क्वायर टेन एक्स टेन वाई की टर्म अगर मैं राइट साइड में ट्रांसफ़र करता हूँ तो बी स्क्वायर कॉमन निकलेगा, 1 प्लस टेन एक्स इंटू टेन वाई. अब देखिए टेन एक्स माइनस टेन वाई, 1 प्लस टेन एक्स इंटू टेन वाई, दिमाग में जल्दी आ जाएगा. टेन ऑफ एक्स माइनस वाई के फॉर्म में ये फंक्शन आ सकता है. ओके सो देखिए टेन एक्स माइनस टेन वाई अपॉन 1 प्लस टेन एक्स इंटू टेन वाई इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन दिस ए बी स्क्वायर अपॉन दिस ए बी. तो यहाँ पे ये बनेगा बी बाई ए, राइट. एंड दिस इज़ व्हाट, ये किसका फार्मूला है, टेन ऑफ एक्स माइनस वाई का, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, टेन ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू बी बाई ए. नाउ आई कैन ईजिली डिफ्रेंशिएट दिस फंक्शन. सो मैं इसको एक्स माइनस वाई को लिख देता हूँ टेन इनवर्स ऑफ बी बाई ए. अब इसमें ए बी कांस्टेंट है तो ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, इसलिए मैंने टेन को टेन इनवर्स में शिफ्ट किया है. डिफ्रेंशिएट करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज़ 1, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, ये पूरा कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा. इस तरह से मुझे डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा 1. सो 1 इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन नंबर 95. सो 1 इज इन द ऑप्शन बी, सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट है 95. नाउ 96, ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है. 96, सी द सॉल्यूशन ऑफ 96. क्वेश्चन देखने के बाद वीडियो पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए. ओके सो सी द 96, क्वेश्चन नंबर 96 एंड दिस इज द 96 फॉर यू. हियर आई हैव गिवन द डेरिवेटिव ऑफ, पहले से ही मुझे डेरिवेटिव दिया है लॉग ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स टू द पावर 4 अपॉन रूट ऑफ 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव दिया है. राइट साइड में जो अननोन्स है ए बी सी, उसे फाइंड आउट करने का है और मुझे वैल्यू लिखने की ही a माइनस बी माइनस सी की. तो मैं इसको लिख लेता हूँ 96 का एक क्वेश्चन है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ साइन क्यूब ऑफ x इंटू कॉस एक्स टू द पावर 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 3. तो इसको मैं पहले डिफ्रेंशिएट करूँगा, फिर इसके राइट हैंड साइड से मैं कंपेयर करके ए बी सी फाइंड आउट करूँगा. सो दिस इज़ द गिवन फंक्शन एंड आई हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव. तो लॉग है तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ यूजिंग द रूल्स ऑफ लॉगरिथम. लॉग m बाई n यानी लॉग m माइनस लॉग n, पूरे रूल्स इसके यूज़ करूँगा. तो ये बनेगा 3 लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस इंटू है तो प्लस होगा 4 लॉग ऑफ कॉस एक्स, ये डिनोमिनेटर में तो माइनस होगा. अब ये 2x प्लस 3 का पावर 1/2 है, लॉग ऑफ 2x प्लस 3 टू द पावर 1/2 आगे आएगा 1/2 इंटू लॉग ऑफ व्हाट 2x प्लस 3. तो
लॉग के रूल्स यूज़ करके मुझे ये फंक्शन इस तरह से मिला है। अब मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूँगा। सो 3 डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स, तो 1/sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, तो कॉस बाय साइन क्या होगा, कॉट एक्स होगा, प्लस 4 1/cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस साइन एक्स, तो ये -4 साइन बाय कॉस क्या होगा, tan x होगा, 1/2 और इसका डेरिवेटिव होगा log x का 2x प्लस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 3 2 होगा। सो दिस 2 विल गेट कैंसल। सो ये बनेगा 3 cot x माइनस 4 tan x माइनस 1/2x प्लस 3। एंड इस फंक्शन को मुझे दिया है राइट हैंड साइड में दिया है, इस फंक्शन को a cot x इजी क्वेश्चन है। a cot x माइनस b tan x माइनस b tan x प्लस c अपॉन 2x प्लस 3। कंपेयर करो दोनों साइड्स कंपेयर करने के हैं। कंपेयर दिस विद दिस। cot x का कोएफिशिएंट a, तो a मेरा 3 है, tan x माइनस b इक्वल टू -4, तो b इक्वल टू 4 प्लस c कितना है -1, तो c कितना है -1। ओके, प्लस c a -1 है, तो मुझे वैल्यू पूछी है a माइनस b माइनस c, a माइनस b माइनस c, 3 -4 माइनस प्लस 1, तो -1 प्लस 1 कितना होगा 0 इसका आंसर है। सो दिस इज इन द सेकेंड ऑप्शन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सो दिस वाज द लेक्चर नंबर 8 12 एट द 96 इम्पॉर्टेंट MCQs हमने अब तक सॉल्व किए हैं ऑफ डिफरेंशिएशन फॉर MSTCET, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट सिलेक्टेड MCQs। तो स्टूडेंट्स देखते रहिए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस एंड काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको इन लेक्चर्स में दिखाई देंगे। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर योर होमवर्क। अब होमवर्क का क्वेश्चन आपके लिए है और उसका सोल्यूशन आपको पता है हमेशा की तरह अगले लेक्चर में आपको मिलेगा, लेकिन आप खुद उसको ट्राई कर सकते हैं। सो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 97, ये 97 नंबर का क्वेश्चन है। इसे आप सॉल्व कीजिए एज अ होमवर्क, और इसका आंसर अगर आप सॉल्व करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड कीजिए। सो स्टूडेंट्स रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय।